Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great. So, as you know, that I had started this series, or this series is related to the general knowledge questions, uh, which are related to the PMS, right? ये सारे जो भी जितने भी पेपर्स में सॉल्व कर चुकी हूँ 2005 से ऑनवर्ड्स, ये सारे पीएमएस के पेपर्स हैं जो आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. So yes, if you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button, subscribe my channel and share my content with your friends. And today I'll solve the lectures. This lecture is related to the general knowledge PMS paper, and it is 2019 year paper. Okay, so yeah, and also if you are new in my channel, you must press the bell icon so you people will never miss any lecture. So yes, without wasting your time, let's start our today's class. The first question is, who among the following is the current Secretary General of the SAARC? Okay, तो ये जो है वो पेपर है 2019 का. उस टाइम जो था जनरल सेक्रेटरी वो थे अमजद हुसैन सियाल थे. ओके, सार्क के जो थे वो अमजद थे. अमजद हुसैन सियाल थे, बट अगर आपको लेटेस्ट पूछा जाए तो वो है गुलाम गुलाम सरवर, राइट? गुलाम सरवर हैं currently. Okay, the next question is, who was the first governor general of the स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? तो उस टाइम तो जाहिद हुसैन थे करंट. तो अगर आपको करंट पूछा जाए तो आप करंट ही देखेंगे, राइट? तो कौन है ये? ओके, तो 2019 में अगर जाहिद हुसैन थे तो अब करंटली कौन है? तो करंटली हैं जमील हुसैन. जमील हैं गवर्नर जनरल. ओके, आप ये जो है वो याद रखिएगा, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुर्द Waldheim was an Australian diplomat and the statesman who served two terms as the Secretary General of United Nations. तो वो फोर्थ नंबर के थे, राइट? ही वॉज ऑफ फोर्थ नंबर. वो फोर्थ नंबर के थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल सेलेक्ट द जजेस, राइट, of international court of judges for the period of 9 years के लिए करते हैं. ये भी आप याद रखिएगा. दी ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है. इज कंप्राइज ऑफ 15 judges. Okay, 15 judges is the right option, option B. Other options like 30, 20, 35 are wrong options. The next question is, the Khirtar range is a mountain range in Pakistan extending about 190 miles. In which province of Pakistan does the range's largest पोर्शन रिजाइड? ये जो खीरतर माउंटेन है ये एक रेंज है पाकिस्तान में, एक्सटेंड करती है अप टू 190 माइल्स. तो ये बोल रहे हैं कि कौन से प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में ये रेंज जो है वो इसका लार्जेस्ट पोर्शन है? तो ये है बलूचिस्तान में. ओके, ये बलूचिस्तान वाली साइड में. अदर ऑप्शंस लाइक सिंध, KP and Punjab are wrong options. Option B, Balochistan is the correct option. The next question is, when Balochistan was given the status of Pakistan? तो बलूचिस्तान को स्टेटस दिया गया था पाकिस्तान का 1970 में. ओके, other options like 1969, 1971, 1972 are wrong options. ये 1970 आप याद रखें. ओके, the next question is, what is the length of Karakoram highway? Karakoram. Karakoram. ओके, व्हाट इज द लेंथ? ये लेंथ पूछ रहे हैं. 810 माइल्स. कराकरम चाइना की साइड है. ओके, सो ये जो हाईवे है इसकी जो रेंज है वो है 810 माइल्स. अदर ऑप्शंस लाइक 910 माइल्स, 710 माइल्स एंड 610 माइल्स are wrong options. Only option A, 810 miles, is the correct option. Who among the following was a penalty match?
Viceroy of the British India? तो the options are Lord Mountbatten, Lord Wavell या Lord Linlithgow। इसको आप देख लें कैसे प्रोनाउंस करना है। Linlithgow है, I don't know how to pronounce it right. Lord Williamton। Okay, so the correct option is Lord Wavell। ये है लॉर्ड वेवल अमंग द फॉलोइंग जो है वो पेनल्टीमेट वॉइस रॉय थे ब्रिटिश इंडिया के। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिना पाकिस्तान एंड Islamic identity. The Search for the Salahuddin is the book based on the conversations and the interviews of those who were close to Jinnah. Who wrote this book? अब ये बुक का नेम है जिसका नेम है जिन्ना पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी। ओके, तो ये पूछा ये गया है द सर्च फॉर द सलाउद्दीन इज द बुक। ये एक बुक था जिसमें कन्वर्जेशंस एंड इंटरव्यूज थे और दोज हु वर क्लोज टू जिन्ना, जो लोग क्लोज थे जिन्ना के उनसे लिया गया था। तो वो किसने लिखा है? तो ये है अकबर एस अहमद। ओके, अकबर एस अहमद। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताजमहल वाज built by Shahjahan to immortalize his wife Mumtaz Mahal. Its construction spent 22 years. ओके, देखें 22 years लग गए थे और ये ताजमहल अभी तक जो है वो बहुत ही ज्यादा विजिटिंग प्लेस, विजिटर्स इस जगह पे बहुत जाते हैं। ये शाहजहां ने बनाई थी, ये भी आप खुद से पूछ सकते हैं अपनी वाइफ मुमताज के लिए। ओके, तो पूछा ये गया है कि व्हेन वाज द प्रोजेक्ट कमेंस्ड, तो वो स्टार्ट कब हुआ था? तो वो स्टार्ट हुआ था 1632 में। ओके, 1632। अदर ऑप्शंस लाइक 1622, 1642 एंड 1652। तो ये सारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ओनली ऑप्शन बी 1632 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज how many layers does Earth's atmosphere have? So Earth mainly have 4 layers. Okay, अर्थ की बात हो रही है। अर्थ में जैसे कोर होता है, मांटल होता है, फिर अपर मांटल होता है, लोअर मांटल होता है और क्रस्ट होता है। और अगर हम लोग इसको वैसे भी अगर डिवाइड करें तो ये एक ट्रिक बताई थी ना सर ने कि ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, सो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सारी जो लेयर्स हैं, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये लेयर्स हैं अर्थ की, राइट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें मेजर 4 लेयर्स हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पूछ रहा है इसमें तो, राइट। इसमें पूछ रहा है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं? ओके, तो टोटल 4 हैं। ओके, the next question is less than 1% of the Earth's water is fresh water, but the oceans contain। अच्छा जी, अब ये बोल रहे हैं कि लेस देन 1% तो है अर्थ में, अर्थ वाटर जो है वो फ्रेश है, पर कितना परसेंट जो है? बट द ओशंस contain परसेंट ऑफ वाटर ऑफ द अर्थ्स वाटर इज। ओशन कितना कंटेन करते हैं? तो ओशन कंटेन करते हैं 97%। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु among of the following is the current president of Azad and Jammu Kashmir? ओके, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, तो उस टाइम मसूद खान थे, उसमें ये 2019 में, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कटास ताज टेम्पल आर revered Hindu temples in Pakistan. In which district the temple is? तो ये जो है वो चकवाल में है, चकवाल में है ये, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नवाब मालिक अमीर मोहम्मद खान
ये मलिक है, नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान, ऑल्सो नोन एज नवाब ऑफ कालाबाग, was governor of West Pakistan in 1960. He was from मियांवाली, वो थे मियांवाली से, ये नवाब मलिक अमीर मोहम्मद खान, जिनको हम लोग नवाब ऑफ कालाबाग भी कहते हैं, वो गवर्नर रह चुके हैं वेस्ट पाकिस्तान के। वेस्ट पाकिस्तान मींस जो पाकिस्तान है अभी, और ईस्ट पाकिस्तान तो हम लोग बांग्लादेश को कहते थे, राइट, क्योंकि वो ईस्ट में आता है पाकिस्तान के। सो इन 1960 के बारे में बोला गया है, तो वो मियाँ वाली से थे। ओके। अटक फोर्ट वाज built ड्यूरिंग द reign ऑफ विच मुगल। तो अटक फोर्ट जो था वो अकबर के टाइम पे बनाया गया था। ए फोर अकबर, ए फोर अटक, आप इसको ऐसे याद कर लें, राइट। अदर ऑप्शंस लाइक हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब आर रॉन्ग ऑप्शंस। Okay, the next question is bit is also called. Bit is also called. The options are binary unit, binary digit, binary system, digital system. So bit is also called the binary digit. Okay, bit is also called a binary digit. The next question is according to the World Bank, um, what was the growth rate of Pakistan in 2018? तो उस टाइम 5.2 जो था वो अब स्टेट बैंक ने प्रेडिक्ट किया था, बट अगर हम लोग लेटेस्ट जीडीपी ग्रोथ रेट देखें 2024 का, तो वो 2.5% था, राइट। सो आप ये डेटा वगैरह जितनी भी है वो आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से, वर्ल्ड बैंक डेटा बैंक से आप ये ले सकते हैं इजीली। ऑथेंटिक सोर्सेज हैं ये, right? What is the which of the following vitamin contains traces of selenium? So options are vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin K. So option B is the correct option, vitamin E. Okay. Prom chips are programmed by plugging them into. So prom chips are programmed. The options are chips kits, ROM burners, PROM programmers, या PROM readers. So option C is a correct option. PROM programmer. Okay, PROM programmer. The next question is IRSA. Indus River System Authority was established for regulating and monitoring the distribution of the water sources of distribution of water sources of Indus River in 1992 में। ओके, अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इरसा स्टैंड्स फॉर, ये भी आप याद रख लें, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, राइट। ये भी आप याद रख लें, और ये इसकी डेट भी याद रख लें, 1992 में। ओके। अदर ऑप्शंस लाइक 1991, 1993, 1994, these are wrong options. Only option B, 1992 is the correct option. Sindh Sagar Doab is one of the five major doabs of Punjab province. It is tract, tract of land between the following rivers. So it is between Indus and Jhelum. Okay, Sindh Sagar Doab. Okay, other options like Indus and Chenab, in Chenab and Jhelum, Jhelum and Ravi are wrong options. Indus and Jhelum is the correct option. Indus and Jhelum. Okay, who is the current chief of air staff? So 2019 में ये बात हो रही है, तो उस टाइम करंट कौन थे, तो वो मुजाहिद अनवर थे, राइट। करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ उस टाइम जो थे वो कौन थे, वो थे मुजाहिद अनवर थे। ओके, मुजाहिद अनवर। बट अगर आपसे करंट में अगर 2025 की बात करूं, तो वो है जहीर अहमद बाबर सिद्धू। ओके, चीफ मार्शल ऑफ एयर स्टाफ। ओके,
Next question is International Mother Language Day is celebrated on. So it is celebrated on 21st February. Okay. Other options like 21st March, 21st April, and 21 May are wrong options. Option A, 21st February is the correct option. International Mother Language Day. Okay. Which among the given options is the capital of Kazakhstan? So the correct the options available are Tashkent, Astana, Dushanbe, and Ashgabat. So option B, Astana, is the correct option. Okay. If I'll talk about the next question, then SCO, Shanjak Cooperation Organization, was established in so it was established in 2001. Okay, other options like 1995, 1996, and 2009 are wrong options. Only option B, 2001, is the correct option. According to the report published by IMF, Pakistan has been ranked third in the world among countries facing acute water shortages. उस टाइम तो थर्ड थे। उस टाइम की जो रिपोर्ट आई थी 2019 का पेपर है ना, तो उस टाइम पाकिस्तान थर्ड नंबर पे था। Okay, the next question is Amnesty International is an international non-governmental organization for the human rights and it was found in एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स के लिए। सो वो कब बनी थी ये पूछा गया है। द ऑप्शंस आर 1960, 1961, 1962, 1963। सो वो बनी थी 1961 में। ओके, the next question is a mechanical stopwatch can measure a time interval up to a minimum 0.1 सेकेंड्स मिनिमम पूछ रहा है। मिनिमम ये जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है वो मेयर कर सकती है कम से कम कितने सेकेंड्स, तो 0.1 seconds. Okay, this is the correct option. Other options are wrong options. Only option B is the correct option. When in ICC Champions Trophy did Pakistan defeat India? So Pakistan defeat India in 18 June 2019 का पेपर है ये, मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ, राइट। So option A is the correct option. Which among the following defines the event of supernova? Which of the following defines the event of supernova? Super event of supernova. Okay, so options are expanding black hole, exploding star, या शाइनिंग कोमेट या मूविंग एस्टेरॉइड। So option B, exploding star. Okay, exploding star is the correct option. Which among the following defines the event of supernova? So it is exploding star. Exploding star. Okay. King of Poop 1, माइकल जेनसन, जो जैक्सन है, ये माइकल जैक्सन है, was an American singer, songwriter, and dancer. He died in माइकल जैक्सन की बात हो रही है। ये आपको पता है कि माइकल जैक्सन अमेरिकन सिंगर भी थे, सॉन्ग राइटर भी थे, डांसर भी थे, बहुत फेमस। तो उनकी डेथ कब हुई थी? तो वो हुई थी जून 2009 में। ओके, ये आप याद रख लें, जून में 2009 में। Who among the following is known as the poet of beauty? ये जॉन कीट्स बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन आपने पहले भी देखा होगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पोएट ऑफ ब्यूटी। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ या रोडयार्ड या पीबी शेले, these are wrong options. Only option B, John Keats, is the correct option. In mathematics, a solution to an equation that emerges from the process of solving the problem but is not valid solution to the problem is called. So it is called extraneous. Extraneous. Okay. So this is the correct option. Other options are wrong options.
The next question is the number of elements in the power set 1 2 3. So कितने होंगे? तो वो होंगे 8 number of elements. Okay. Other options like 5 7 6 are wrong options. The next question is how many subset does an empty subset have? So 1. Option B is correct option. Other options like 0 2 and 10 are wrong options. Only option B 1 is the correct option. The next question is when a triangle has a two congruent sides, it is called. So it is called isosceles triangle. Okay. इसमें ये आप याद रखें कि टू साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों उसे कहते हैं isosceles triangle. Okay. The next question is the mean is equal to the sum of all the values in the data divided by the number of values. जिसे आप एवरेज भी कहते हैं ना, उसे मीन कहते हैं हम लोग. मतलब ये जो होता है जितनी टोटल वैल्यूज होती हैं लिखी हुई हैं उनको प्लस करके सारों को और जितने नंबर्स हैं उनसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो उससे हम मीन कहते हैं. अदर ऑप्शंस लाइक मोड मीडियन ज्योमेट्रिक मीन आर रॉन्ग ऑप्शंस. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज histogram, okay, is a representation of the frequency distribution by means of rectangles whose widths represent class intervals and whose area are proportional to the corresponding frequencies. उसे हम कहते हैं histogram. Okay. The next question is which instrument is suitable to measure the internal diameter of test tube? So वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर. इसकी आप पिक्चर भी देख लीजिएगा. ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो सुटेबल होता है कि आप मेयर करें इंटरनल डायमीटर ऑफ द टेस्ट ट्यूब. ओके. ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रूड ऑयल इज हीटेड इन द फर्नेस अप टू. आप क्रूड ऑयल को हीट कर सकते हैं फर्नेस में कितने टाइम का टाइम तक? 40 डिग्री सेल्सियस तक. ओके. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस एंड द स्टोरेज ऑफ. सो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या करता है? वो सिंथेसिस एंड स्टोरेज करता है लिपिड्स की. ओके. लिपिड्स की. So this is the correct option. Other options are wrong options. The World Food Program, an organization of United Nations, was created at the behest of. तो वो इनके जो है ऑप्शन बी जो लिखा हुआ है डिवेट एसनहोवर. ओके. ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस की, वो क्रिएटेड की गई थी इनके बेहस पे. ओके. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज असाबिया. ये आपको पता है ना, इब्ने खल्दून ने ये असाबिया का कॉन्सेप्ट दिया था. ओके. ऑफ द सोशल सॉलिडेरिटी. ओके. विद एन emphasis on unity was given by इब्ने खल्दून. ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहलाते हैं. असाबिया का कॉन्सेप्ट दिया था, एक टर्बन का कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने. आपने अगर पढ़ा हो सोशियोलॉजी सही से तो. ओके. मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी was the polymath physician, alchemist and the philosopher from. वो ईरान से थे. ओके. ये ईरान से थे, ये आप याद रख लें. इन्होंने कॉन्सेप्ट किस चीज का दिया था? पोलीमेथ फिजिशियन अल्केमिस्ट एंड द फिलोसोफर ये थे मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी. वो क्या थे? वाज अ पोलीमेथ फिजिशियन थे, अल्केमिस्ट थे एंड फिलोसोफर थे. वो ईरान से थे, ईरान से. ओके. ये कानून होगा. ओके. अल कानून फिर तिब is an encyclopedia of the medicine in 5 books written by
एवेसिना, ये है एवेसिना। अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस, ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इसमें मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स भी कुछ देखी हैं। तो अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन गलत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में सेट्रन जो था वो करेक्ट ऑप्शन था, बट इस पीडीएफ में जुपिटर के बारे में दिया गया था कि जुपिटर के पास जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं, बट नो, सैटर्न के पास जो है वो ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हैं। इसमें आपको अगर कोई मिस्टेक लगे तो वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, राइट? क्योंकि ये मैंने पीडीएफ खुद से नहीं बनाया, राइट? ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड दिस सनस्पॉट? तो वो गैलीलियो थे जिन्होंने सनस्पॉट क्या किया था, डिस्कवर किया था। ओके। अदर ऑप्शंस लाइक केपलर, Einstein, Copernicus are wrong options. Only option C is the correct option. The next question is which city was hit by the earthquake in 1935 में? So 1935 में कोयटा में आया था ये earthquake। ओके, 1935 की बात हो रही है कोयटा में। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक मुजफ्फराबाद, अटक, पेशावर आर रॉन्ग ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री डज दी बतूरा ग्लेशियर लाई? तो ये पाकिस्तान में है। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक नेपाल, चाइना, इंडिया, रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन ए बतूरा ग्लेशियर इज द जो है वो पाकिस्तान में है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 इज विच प्रोविंस अमंग द फॉलोइंग हैज द उच गेस्ट फील्ड? तो ये बलूचिस्तान में है। ओके, उच गेस्ट फील्ड। अदर ऑप्शंस लाइक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब एंड सिंध आर रॉन्ग ऑप्शंस। So guys, if you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and also press the bell icon so that you people will never miss any video lecture. And yes, it took a lot of efforts to make a video for you. So अगर आपको थोड़ी सी भी आपने नॉलेज गेन की हो या आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा, राइट? और इसमें कुछ नहीं जाता आपका अगर आपका लाइक कर देंगे तो, राइट? बस ये एक एप्रिसिएशन होती है, इट्स अ काइंड ऑफ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। आपके लाइक करने से हमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया है। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो अ, अच्छा, वो आपकी मर्जी है। अगर आपको लगा आपको सही लगे तो आप कर दीजिएगा सब्सक्राइब, अगर नहीं तो आपकी मर्जी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।